To all of you on the behalf of RVS, KVB and NAHEP. I welcome our today's guest speaker as well as our participants. Before starting of today's lecture, I would like to give a brief introduction of our guest speaker, Dr. Ajay Thakur sir. Dr. Ajay sir is a scientist AF and head at FRI University, Dehradun. He had done PhD from the University of Wales, Bangor, UK. He is handling 9 research projects currently and completed 4 research projects on bamboo as a PI and key investigator. Dr. Ajay sir has published many research papers in national and international reputed journals. He also presented their work and experience in the form of books, technical bulletins, journal articles, reports, international proceedings, TV talk, etc. And as a course director, he successfully conducted 3 trainings on bamboo. This is the brief introductions of today's our expert. The topic of the today's lecture is the product development, keeping in view market demand by assisting R&D, entrepreneurship, and business model at cooperative, micro, small, and medium level, and feed bigger industry. Now I request to Dr. Ajay sir to please start sir your lecture, sir. Please, sir. Namaskar, good afternoon, and thank you for your kind words. Yes, I have a passion for bamboo, and apart from doing research, personally I am involved with many people around who work in bamboo on non-governmental schemes as well, and farmers most particularly. My expertise, no doubt, it is genetics, so tree improvement, tissue culture I handle. But major project I had, it was in 2006 to continued up to 10. It was a Muli bamboo flowering in Northeast, and that was considered as a catastrophe, because if you recall, in last Muli flowering in between 60s, that created Mizo National Front. It was actually Mizo National Famine Front. So we started talking something like this in 2000, like we are expecting after that anytime flowering. So government, we pushed Government of India, and Government of India at that time, especially given 85 crores. That was, I mean, 2004-5, it was big money. Hello, sir. To all states. Hello, 1 sir. crore for research to handle Hello, sir. this problem across the Avinash, northeastern please request area. to be louder, please. Oh, Ask sorry. him to be a little bit louder, sir, please. Now, okay? Uh, Now, okay? Or okay, अभी sir. ठीक है? अच्छा, actually, Bit louder, sir. Bit louder. Yeah. अभी ठीक है? Still little bit more. अच्छा, अभी एक मिनट. Actually, थोड़ा वेदर कंडीशन के कारण बहुत ज्यादा इको हो रहा है बाहर से बारिश का. We have great rain today. बादल फटने वाला बोलते हैं जो incidents. So now it is okay, I guess. Yes, sir. You're audible. Okay. You're audible. So, please. So this started like that, and so we had I worked in RFRA Jorhat. So you know, if you work on bamboo, 3-4 states. I mean, Northeast is a complete all combination of states, and Central India like MP and Chhattisgarh. So these are the states. West Bengal, very important for bamboo and anything about bamboo, because if you have bamboo, then you think bamboo, then you do bamboo and another thing. So I work from cultivation to propagation, cultivation. Apart from that, recently I found a new interest in utilization, because I realized we are way backward, hugely backward in this area, and just, I mean, we haven't developed ourselves, say, more than 1,000 years back. जो 1000 साल पहले करते थे वही अभी भी कर रहे हैं. So I'm trying different techniques, जिसमें North Indian especially other parts say carpenter can do better,
and also trying to incorporate many other sectors and furniture sectors and other sectors so that they can give better input, and finally we will get better result. My main work is very much on utilization side. My focus was on black bamboo. This is the only bamboo. We have two black bamboo in the world, Gigantochloa atrovaleacea, and other is Phyllostachys nigra. Phyllostachys nigra is very thin bamboo, hardly 1 inch thickness. So it's a Gigantochloa atrovaleacea. This is a very good bamboo, and we are using for furniture, and it took me 10 years. So now we have perfected the technology to, and the color is very good. All bamboo just lose their color. Finally, they come with a pale yellow type color, but this remains brown to black. So I have some furnitures also made in the back. Also, you can see there is a sofa and those things. So I'll show you my photograph. Shall I start my sharing? Yes, sir. Please. I assume, just before going to that, I assume we have type of background. We have mostly scientists and graduates of what type of background we have? Sir, we have graduate, postgraduate students from agriculture background, and we have also the faculty of agriculture, and agriculture departments participants are there. I have seen, I have seen some horticulture as well, agriculture. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Functionaries, mostly like detailed into horticulture or those posts I've seen. So, and some agriculture college faculties also, isn't it? Yes, sir. So just I will try to, because this is a mixed type of batch, so I have to try to be. And topic, I guess it is one of the difficult topic I got. Sir. It's a big topic it was. Sir. For me, it was quite big, so I reduced topic in, so that I can converse better. So shall I start now? So bamboo Yes, sir. practical innovations, research and development for product development. So I am already introduced, and bamboo. I mean, I'm not going much about bamboo because a lot of speaker already been there. Kamil Salam is there, and so many good persons are there. So, but basically, few things I would like to share again. Base thing is why it is sustainable. Sustainability is the key for bamboo at this moment, because this is the only thing. यही एक ऐसा है जिसको काटो फिर नया निकलता है. इनफैक्ट मैं हमेशा बोलता हूँ एक काटो तो दो निकलता है. एंड इफ यू डोंट मैनेज, काट के नहीं करेंगे तो गंदा क्लम्प हो जाएगा. 6 साल के बाद बैम्बू का जो शूट होता है दैट विल डाई. तो प्रैक्टिकली आपको काटना है. क्लम्प एस्टेब्लिशमेंट इसका 2 से 3 साल में होता है. सो बैम्बू हैज अ फेज अप टू 2 years. बैम्बू अपने बचपन में होता है, चाइल्डहुड डिपेंडेंट, काफी जो बच्चा होता है लाइक जानवर का बच्चा डिपेंडेंट. उसके बाद 2 to 8 years, एटलीस्ट 7 year तो है ही है, लेकिन 8 years वो अपने जुवेनाइल फेज में होता है. टीनेजर का रिएक्शंस अलग होता है. 5 साल के बाद लेटर टीनेजर होता है और अर्ली वाला टीनेजर होता है. टीनेजर को हम ज्यादा नहीं छेड़ते हैं. हम लोग एक्सपीरियंस हो गए हैं, तो आई कैन टेल यू, हम लोग घर में भी बच्चों को टीनेजर्स को छेड़ते नहीं है. ठीक है यार, ठीक, हाँ ठीक है, अपने दिमाग नहीं. सो आई ऑलवेज सजेस्ट 5 साल तक बैम्बू को लगाने के बाद छेड़ते नहीं है. 8 year के बाद वो अपने यूथ पे आता है, एंड 8 to 14 year एकदम से दमादम प्रोड्यूस करता है. फिर उसके बाद 14 year पे स्लगिश हो जाता है. बैम्बू इंडिटरमिनेट नहीं है, बट इन बिटवीन है. जैसे ट्री इंडिटरमिनेट है, 7 साल 6000 साल का भी ट्री रिकॉर्डेड है, बाओबाब का एक ट्री है. बैम्बू का लाइफ साइकिल रफली 40 से 50 साल है. 47 टू बी वेरी स्पेसिफिक इन मेनी बैम्बू स्पीसीज. तो उसके बाद वो खत्म हो जाएगा. तो उसमें 2-3 फेज आएगा उसका, जहां पे वो रिजुवेनेट आपको करना पड़ेगा, आपको काटना पड़ेगा, थोड़ा खाद डालनी पड़ेगी, एंड दोज आर द प्रैक्टिसेस का पार्ट है. 3rd year ऑनवर्ड के बाद जो थिक शूट प्रोड्यूस होता है वो आप 5वें साल में काट सकते हैं किसी भी यूज में. आई डोंट सजेस्ट एनीथिंग लेस देन 2 years, और उसके बाद 2 years के बाद ही यूज करें. डिपेंड ऑन यूज. बैम्बू 2 से लेके 4 साल वाला, इंजीनियरिंग काम के लिए 3 और 4 साल वाला बहुत अच्छा होता है. So
अभी अब हम बात करते हैं यूजेस की। देयर आर 1500 रिकॉर्डेड यूजेस बोलते हैं, पर मैंने रिकॉर्ड कभी नहीं देखा है। बट आई नो देयर आर मेनी यूज इन नॉर्थ ईस्ट। आई कैन टेल यू, उनका पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ का पार्ट है, दैट इज बैम्बू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टिल आई ट्राई टू थोड़ा सा कंसाइज किया है। न्यूज प्रिंट है, बॉन्ड पेपर्स कार्डबोर्ड टाइप के हैं, क्राफ्ट पेपर पल्प से हम लोग निकालते हैं। एंड दूसरा इसका बन जाता है लाइक फाइबर। इसी से क्राफ्ट पेपर की जगह हम अगर डिजॉल्व ग्रेड पल्प निकालेंगे तो माइक्रो सेल्यूलोज निकलता है, जिससे रेयॉन निकलता है। इफ यू हैव अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी देन आपको लाइसेल टेक्नोलॉजी, तब भी रेयॉन ही निकलेगा। देन फूड एंड बीवरेज इंडस्ट्री बहुत बड़ा सेक्टर है, हम आगे डिस्कस करेंगे। बैम्बू शूट्स, बैम्बू बियर, बैम्बू वाइन, बैम्बू टी, बैम्बू विनेगर, बैम्बू पिकल्स। फिर फॉरेस्ट्री का आपका इसका रोल हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द ओनली स्पीसीज जो एक साल में अपना पूरा बायोमास ले लेता है, हार्वेस्टेबल बायोमास। सो कार्बन अगर देखेंगे तो कैच एक साल में कर लेता है। Environmental remediation, soil stabilization, erosion control, wind break, carbon sequestration, commercial and energy plantation, so you name it. वुड इंडस्ट्री में तो इसको आने वाले टाइम का हम बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट करेगा। सो दीज आर द थिंग्स वी डिस्कस नाउ। एक ग्रांड व्यू रिसर्च काम करती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सर्वे किया था एंड दे एस्टिमेटेड up to 2018 there is about $70 billion market है worldwide. Majority will go to industrial products, 29% है, furniture 16%, food 16%, raw material 6%, and others जो combine है वो 33 है। तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल, फर्नीचर एंड शूट। हम इसको ध्यान में रखें और उसको करें तो देखो आप आराम से मोर देन 60% तो हम आराम से कवर कर लेंगे। एंड 60% कवर हो गया तो आपका मेजर सेक्टर कवर हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात, हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं बैम्बू में। एक पर्टिकुलर टाइम में वी स्टार्टेड, वी रीच्ड अप टू 10,000 करोड़ से ऊपर हम इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था फ्यू इयर्स बैक। बट थिंग्स हैज चेंज्ड, अब हमने बहुत रिड्यूस किया है। सो इन बार का डाटा है कि कैसे कैसे है उनका। इन बार का डाटा थोड़ा अलग है, लेकिन ये सेक्टर वाइज फर्दर उन्होंने डिस्क्राइब किया है। आप देखेंगे तो हम आते हैं ग्रीन लिस्ट में इंडिया, हम रेड इधर जो ऑरेंज लिस्ट में है, वी आर नॉट देयर। तो ग्रीन लिस्ट इज इम्पोर्टर कंट्री है, तो हम इंपोर्ट कराते हैं। इवन हमको कंट्रीज लाइक क्या नाम, इटली और ये सब भी हमको इंपोर्ट करता है। अब वी आर कमिंग टू द पॉइंट कि हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करते हैं, मार्केटिंग क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है। R&D तो अभी बहुत बात की बात है, फिर भी आई विल डिस्कस रनिंग में, लेकिन आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए बैम्बू का इन्वायरमेंटल छोड़ दीजिए, मतलब सॉइल, जड़ से भीतर, बिलो द सॉइल, इफ यू लीव इट, तो ये प्रोडक्ट्स बैम्बू के होते हैं जो हम यूज करते हैं। सॉइल में वो कार्बन फिक्स कर देता है, अबाउट 30% के आसपास कार्बन वो सॉइल में फिक्स रखता है। सो कार्बन फिक्सेशन में तो रोल है ही है। एंड अबाउट 15 to 16% जमीन के भीतर इसका रूट और राइजोम फैला होता है। नाउ आई एम कमिंग टू इंडस्ट्रियल यूजेस। पोल्स, हमारा इसका पल्प, पेपर, बैम्बू वुड, बैम्बू प्लाई, यू नेम इट, वुड जो हमने डिस्कस किया था। कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक यूजेस, राउंड पोल हम यूज करते हैं, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर्स। लीव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स इससे बनाया जाता है, जिसके रेट मोर देन $50 पर केजी है। टी है, इंडिया से में भी प्रोड्यूस करने लगे हैं, हमारे दोस्त हैं समीर जमातिया त्रिपुरा में, बनाते हैं, सेल भी करते हैं। कंपोस्ट है, एंड देन सिलिका। बैम्बू लीव्स में बहुत सिलिका होता है, ऑर्गेनिक सिलिका है, इसका हेल्थ में फायदा है। यही सिलिका बैम्बू को बहुत सारे इंसेक्ट और डिजीज से भी बचा देता है। सिलिका आपको बता देता हूँ, ड्राई वेट के हिसाब से बैम्बू में मोर देन 10% कई बार चला जाता है स्पेशल केस में। देन शूट्स, खाने वाला, लोकल कंजम्पशन इसका बहुत तगड़ा होता है। इंडिया में हम नहीं करते हैं, बट स्टिल इंडिया में मोर देन 15 स्टेट्स हैं जहाँ इसका कंजम्पशन होता है।
नॉर्थ ईस्ट तो होता ही है, देन वेस्ट बंगाल है, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, केरला, महाराष्ट्र का थोड़ा पार्ट, जहाँ जहाँ आदिवासीज हैं दे यूज इट, उनके लाइफ में इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. हाउ आई रिलेट इट, वाई इट इज इम्पोर्टेंट. आप कभी इन नेटिव ट्राइब्स वालों को देखना, एक तो इनका फेस देखना और दूसरा इनके बाल को देखना. मोस्ट ऑफ द टाइम यू फील उनका बाल एकदम काला काला रहता है, चाहे कितना भी एज हो जाए. हमारा थोड़ा सा सफेद जल्दी हो जाता है. somehow मुझे हमेशा लगा है कि, और दूसरा स्किन इनका बहुत टाइट रहता है हमसे. कोलेजन, आई डोंट नो रिसर्च क्या कहता है, मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा जो अपना है वो कहता है कि कहीं ना कहीं उनके डाइट में बैम्बू एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो उसका भी रोल हो सकता है. अब वी आर कमिंग टू वैल्यू चेन. हम कहते हैं कि बैम्बू करा, उसके बाद नर्सरी करी, either we use in plantation या natural stand, फिर हम उसको हार्वेस्ट करते हैं. बैम्बू शूट बनता है. बैम्बू शूट को we use in value added products like pickles or fermented shoots etc. और बैम्बू पोल्स को हैंडीक्राफ्ट, अगरबत्ती, फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक यूज, ये ट्रेडिशनल हैं. लेकिन वी नीड टू चेंज. ये वैल्यू एडिशन वाले जो सेक्टर हैं, इसमें चेंज करने की जरूरत है. नाउ वी आर कमिंग, हम उसके बाद करते हैं हार्वेस्टिंग, फिर शूट एंड पोल्स पे बात करते हैं. तो अब आपको प्रोसेसिंग में मैंने बोला था कि फर्मेंटेड फूड शूट है. इंडस्ट्रियल लेवल पे जरूरत है काम करने की. इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करेंगे तो क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे एंड यू कैन प्रोड्यूस बिगर स्केल. ये और साथ में फर्मेंटेड प्रोड्यूस बनाते हैं तो काफी ज्यादा इसका डिमांड वर्ल्ड वाइड है. Then handicraft and agarbatti we already discussed. The greener one I'll discuss now. Engineered bamboo. ये engineered bamboo होता क्या है, क्योंकि पहले भी यूज होता था पैनल्स में, बोर्ड्स में. अब स्क्रिम्बर, अब बनता है स्क्रिम्बर है, OSB है. एक मिनट, स्क्रिम्बर तो मेरा नहीं है. मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ. स्क्रिम्बर मैंने बुलेट प्रूफ टेस्टिंग के लिए आर्मी वालों को भेजा है, और ये बैम्बू का लंबर है. तो इसमें तो हमने बैम्बू की शीट्स करके रेजिन के साथ करके प्रेस कराया है. प्रेस की मशीन होती है और हमने ये बनाया है. मेरे MSc के स्टूडेंट ने काम किया. तो नेचुरली इसमें थोड़ा वर्क में क्वालिटी इशू रहती है, बट इट इज टेस्टेड. और ये है OSB जो है, यहाँ साइड्स बैम्बू के पतले पतले हम इसको लगाते हैं, वही मेथड है, और हम उसके बाद यूज करते हैं. और ये OSB को हम लोग यूज करते हैं और इस तरह से शीट बना देते हैं. इसका अभी देखेंगे तो काफी ज्यादा फर्नीचर में इस्तेमाल हो रहा है, फ्लैट में. स्क्रिम्बर और भी मजबूत होता है. बैम्बू को क्रश ही कर देते हैं, ऑलमोस्ट पतली सीक जैसी बना लेते हैं और उसको रेजिन से इम्बेड करते हैं. वो बहुत हार्ड होता है और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी चला जाता है मोर देन 1.5 और डेंसिटी 1 से ऊपर होता है. हाई प्रेशर जॉब में उसका काम किया जाता है. तभी मैंने इसको बुलेट प्रूफ टेस्टिंग के लिए भेजा, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो शायद बुलेट को प्रूफ कर सकता है. देन बैम्बू चारकोल, हम जो अभी बना रहे हैं, इंडस्ट्री है, भोपाल में भी एक इंडस्ट्री है, बट स्टिल हमको जरूरत है बहुत इंडिया में बड़े लेवल पे, क्योंकि चारकोल एक ऐसा चीज है, अनएक्टिवेटेड चारकोल, जो कंजर्वेशन आने वाले टाइम में इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. किसी भी चीज के रिसाइकिल के लिए, वाटर रिसाइकिल के लिए इसका इस्तेमाल होता है. एंड वी हैव टू, इसको आप अगर देखेंगे तो हमको जो चारकोल बनाना है उसको बहुत आराम से क्लोज सिस्टम में बनाना है. जो गैस निकलता है, वी हैव टू यूज दैट गैस. और उसका एक एंड प्रोडक्ट जो होता है, अगर हमने ठीक से उसको नई टेक्निक यूज की तो एक एंड प्रोडक्ट उसका विनेगर बनता है. सो हम अभी जो चारकोल बनाते हैं क्लोज हाउस में रखते हैं एंड देन वी बर्न इट, एंड अभी वो दिखाऊंगा आगे. एक सेक्टर है बैम्बू फाइबर एंड टेक्सटाइल. ये थोड़ा नया लग रहा है बट इट्स नॉट न्यू थिंग. 1960s में FRI में ये टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, और वो ग्रासिम इंडिया में 2 कंपनी ही बनाती है जो रेयन ग्रेड पल्प बनाती है. एक है ग्रासिम और दूसरा है लाल कुआं में सेंचुरी पेपर एंड पल्प. दोनों बिरला के हैं.
ग्रासिम इज फ्रॉम आदित्य बिरला ग्रुप, और इसका हरिहर पॉलीफाइबर है साउथ में, जो कि फाइबर बनाता है। थोड़ा सा इशू ये आ गया था कि 90s तक ये टेक्नोलॉजी यूज की, बैम्बू मिलना ही बंद हो गया। आई विल टेल यू, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट से मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूँ, बोल देता हूँ वहां से ना लें, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ का यूज में है, वहाँ पे उनका प्रोटेक्शन में है, तो बेटर आपको अलग सिस्टम डेवलप करना होगा। और पल्प में आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं, कोई भी वर्ल्ड क्लास पल्प बनाना है, आपको पेपर बनाना है, तो 7 से 10% उसमें आपको बैम्बू ऐड करना पड़ेगा। बट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज टू हाई। 6 रुपए पर केजी से ज्यादा चल रहा है अभी। मैं आपको आपके एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं अपने एरिया की नहीं बात कर रहा हूँ। अवेलेबल नहीं है बैम्बू। तो अब क्या है कि ये टेक्नोलॉजी 1921 में, 100 साल हो गए हैं, एफआरआई ने डेवलप किया था। और ये टेक्नोलॉजी दी गई थी। इंडिया में ज्यादातर पल्प बैम्बू से ही बनते थे। अभी कहानी थोड़ी बदलाव आ गई है, बैम्बू है ही नहीं, तो इंडस्ट्री भी भूल गई है कि ऐसा कुछ होता है। बट स्टिल वी आर वर्किंग विद, लाइक ओरिएंट पेपर मिल है, वहाँ पे डॉक्टर संजीव जी हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं री इस्टेब्लिश करने की। क्योंकि जब हमारा फार्मर ग्रो करेगा, ऑल्दो पल्प इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई वांट, बट स्टिल बायोमास लेवल स्केल पे तो जाना चाहिए, क्योंकि रिटर्न तो इसमें भी है। सो दीज आर द थिंग। एंड अभी इसमें कहते हैं कि फर्दर जो है फर्नीचर्स में, सब चीजों में हमको थोड़ी मॉडर्न लुक, आउटलुक, नॉवेलिटीज ये लानी पड़ेगी। सो अब हम फर्नीचर पे आते हैं। मैं बड़ा बुलिश हूँ फर्नीचर पे। क्यों हूँ बुलिश? सबसे आसान काम है रिलेटिवली। अगर राउंड फर्नीचर करें तो दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। अगर फ्लैट फर्नीचर करें तो यू नीड मनी। सो यू कैन स्टार्ट विद 50,000 रुपीज एक यूनिट से लेके आप मे भी कुछ करोड़ तक भी कर सकते हैं। बट स्टिल मध्य प्रदेश में सारी जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग यूनिट्स है वो भी मध्य प्रदेश में है, कुछ रतलाम में है, इंदौर में है, देवास में है। तो वहां पे तो काम करना और भी आसान है। इफ आई नीड अ मशीन, मुझे वहां से मंगाना पड़ता है। कुछ चीज मैं अमेजन से मंगा लेता हूँ, एंड दैट इज वर्किंग वेरी वेल। आई विल शो यू। तो इंडिया का जो, मैं फर्नीचर की बता रहा हूँ टोटल, हम $3.5 बिलियन तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और 1.65 एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ग्लोबल शेयर क्या है हमारा? 0.6%। मैं बैम्बू की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो पूरा फर्नीचर सिनेरियो की, जो बैम्बू का कुछ है ही नहीं जहाँ। अब वहां पे हमने ये डाटा मैं बता रहा हूँ, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया टिम्बर मर्चेंट सॉमिलर एंड नवल केडिया जी हैं, उन्होंने शेयर किया था। दूसरी तरफ चाइना, $96.4 बिलियन का तो फर्नीचर मार्केट है उसका। ग्लोबल शेयर 37% है। अब बैम्बू उसमें एक छोटा सा पार्ट है। हम तो बैम्बू, अब हम कहीं नहीं, वहां भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। सो वी हैव टू थिंक। देखिए बैम्बू में नॉवेलिटी है। बैम्बू का 2% मार्केट हो सकता है, कोई बात नहीं। आप जस्ट थिंक अबाउट इट, 50,000 करोड़ का 2% कितना होता है? 100 करोड़ रुपया। एटलीस्ट 100 करोड़ से स्टार्ट करना कोई बुरा नहीं है। हम तो अभी इंटरनल कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, और हो भी रहा होगा, बट वो हमारे डेटा सिस्टम में नहीं आता है, बिकॉज लोकल कंज्यूम लोकली होता है। और आज भी क्वालिटी फर्नीचर, आपको बता देता हूँ, एवरेज प्राइस 15 से 20 हजार से लेके 30 हजार तक का सोफा स्टार्टिंग है। हाँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ रेट थोड़ा कम है, बट बेसिकली मैं उसको एक्सप्लॉयटेशन मानूंगा, बिकॉज लेबर चीप है, आप उतना पे नहीं कर पा रहे हैं। दैट पर्सन जो यूजर है, वो बनाने वाला इतना फायदे में नहीं रहता है। तो वेल, वो सब इश्यूज हैं जिसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। इंडिया का एक एस्टिमेट किया गया है कि हमारा 300, एक्चुअली ये बिलियन गलत हो गया था, 3 बिलियन था, 30 बिलियन, सॉरी, 3,000 करोड़ का मार्केट है। थोड़ा एक जीरो गलत कर दिया मैंने। तो ये इसमें रटन केन का ज्यादा यूज होता है, बैम्बू का बहुत कम है। अच्छा, डोमेस्टिक सेक्टर में ज्यादा होता है। अब हम फर्नीचर का, क्यों मैं कह रहा हूँ 12% ग्रोथ रेट है अभी इस सेक्टर का। हमको अभी भी पोटेंशियल है कि हम $10 बिलियन तक के मार्केट, पूरा वर्ल्ड वाइड है, उसको हम कितना पकड़ सकते हैं। बॉटलनेक्स हैं कुछ, उसको दूर करने की जरूरत है। हम वो बॉटलनेक, एक मेरा आर्टिकल आएगा, आई विल शेयर यू, शायद आप आजकल में कभी भी आ जाए, ब्लैक बैम्बू पे, फर्नीचर पे, तो आई विल शेयर विद यू। इट्स वुड इज गुड इज गुड का पब्लिकेशन हमारा ही है, IWST का एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर। तो
होगा तो सॉफ्ट कॉपी में आई शेयर ऑल। तो अभी हमने अगर अच्छे से काम किया तो 10,000 करोड़ का 2024 में करना पॉसिबल है। मैं एक छोटा एग्जाम्पल, ये सब सब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फर्नीचर ट्रेडिशनल है बट स्टिल एलिगेंट है। इनफैक्ट इसमें फुल्ला बहुत फेमस डिजाइनर है, फुलाहा जी, NID में भी रह चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट में काम किया है, दो तो उनके हैं और जो डाउन में है पुलाहा दास गुप्ता जी और संजीव, ये है, ये बना हुआ है डेंडोकैलामस नीचे वाला सोफा स्टॉक्साई से, और संजीव कार्पे जी के यहाँ का डिजाइन है। और ये भूटान बैम्बू बोलते हैं इसको, डेंडोकैलामस एकिमियासिस हो सकता है, और 2-3 तरह का उनका बना हुआ फर्नीचर है। टॉप में जो ब्लैक कलर का है वो मेरा खुद का बना हुआ है, ये मेरा पहला प्रोडक्ट था। मैंने एक डाइनिंग टेबल डिजाइन किया था सो दैट हम लोग स्टार्टिंग था ये कि छोटे फ्लैट में हैं। इसके बाद राइट साइड में डाउन में हमारा गेस्ट हाउस है, उसका पूरा फर्नीचर बैम्बू का है, उसका एक सूट मैंने डेकोर किया था। तो वो चीजें हैं। ये पिक्चर जो बेड की है वो मेरी नहीं है, मेरी बेड की पिक्चर कुछ और है। दिस इज आई टुक फ्रॉम रांची का एक फर्नीचर जहाँ फ्लैट और दूसरे बैम्बूज शो किए हैं। द थिंग इज, देखिए इसमें लुक इम्पोर्टेंट करता है, हाउ यू प्रेजेंट इट। अब ये इतना सुंदर यहाँ पे जो बायर है ये महंगा खरीदेगा क्योंकि हाई एंड के प्रोडक्ट्स हैं, हाई एंड का मार्केट है। एक हमने मॉडिफाइंग का काम किया था, अभी ये प्रोसेस में है, पेटेंटिंग प्रोसेस का चल रहा है पार्ट। और लेफ्ट साइड में ये इसकी मशीन 3-4 लाख रुपए में आती है, जो स्लैट्स हैं, 4-वे प्लानर होता है, ये भी काफी इस्तेमाल में किया जा सकता है। हम राउंड फर्नीचर के साथ साथ इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। सिंपलर डिजाइन ये सब एक्चुअली स्पेशली है क्योंकि नॉकडाउन फर्नीचर्स का डिमांड ज्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन इज एन ऑलवेज इश्यू फॉर बैम्बू, तो इसलिए इस तरह के फर्नीचर कैंपिंग के लिए हम इसका वर्ल्ड वाइड डिमांड है, एक्चुअली इंडिया से ज्यादा बाहर में डिमांड बहुत है। ये एक प्रोजेक्ट था गुजरात में, वहां पे उन्होंने शेयर किया सिंपल स्कूल के लिए। मैं इसको कलर क्यों देख रहा हूँ, कभी कभी आपको बैम्बू बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज यू लव इट, आई ऑल्सो लव इट, कभी कभी उसका दूसरा रंग भी होना चाहिए। यू नीड ऑलवेज अ डाइवर्सिटी, बोर हो जाएंगे हमारे एक ही सेक्टर को पकड़ के बैठेंगे, तो सिंपलर उन्होंने एनिमल पेंट यूज किया, ब्लैक एंड सॉरी रेड एंड येलो, और किंडरगार्टन स्कूल्स के लिए तो अट्रैक्टिव कलर है ही है, और बैक में तो उन्होंने टचवुड इस्तेमाल किया। सो दीज आर द पॉलिशिंग थिंग इफेक्ट। हम लेफ्ट साइड में देखते हैं तो हमारी तरफ इस तरह का फर्नीचर बनता है जो ब्लैक कलर का नहीं है, ये जो टॉर्च करते हैं हम लोग, टॉर्च करके उसको ब्लैक कर देते हैं। इससे थोड़ा सा जो होता है कार्बोनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, बाहर का जो कैरामलाइज हो जाता है लेयर है वो, उसका जो शुगर है वो बर्न होके ब्राउनिश सा हो जाता है। नीचे में जो डिजाइन है ये थोड़ा मॉडर्न लुक का डिजाइन है। तो आप हमेशा ही ये हम नहीं सोचे, हम हाइब्रिड फर्नीचर की भी बात कर सकते हैं। सेक्टर में घुसने के लिए आपको तरह तरह की चीजें करनी और डिजाइन करनी पड़ेगी। ये हैंड टूल्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में यूज करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इस हैंड टूल से हमारे यहाँ वो तो फिर भी फास्ट हो गए हैं, हमारे यहाँ के कारपेंटर इतनी स्पीड से नहीं कर सकते हैं, लेबर कॉस्ट इज टू हाई। अब उसका लेबर उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो मैंने एक सेट बनाया था, नीति आयोग को भी उन्होंने बहुत पसंद किया। बेसिकली मेरा कॉस्ट ये 50,000 का भी नहीं है, नीति आयोग को सजेस्ट किया था या मैंने कई स्टेट डिपार्टमेंट को सजेस्ट किया है, उन्होंने मेरे इसको सीरियसली लिया तो है। लेट्स सी कहाँ तक पहुंचते हैं। तो ये आप देखेंगे यही बेसिक टूल आपके पास हो तो आप 3 लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, आपकी स्पीड 5 या 6 गुनी बढ़ जाती है। एक बंदा प्रोसेस करता है, दूसरा फिक्स करता है, और एक बंदा उसको ट्रीट करता है। ट्रीटमेंट का इसमें मैंने नहीं किया है, वो हम एक अलग से, क्योंकि बैम्बू में तो वही है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो ये सब स्पेसिफिक, इसके जो शॉर्ट्स भी हैं उसके दांत अलग तरह के होते हैं। एक सिंगल लाइन वाला होता है जिससे कि आप बैक करेंगे तो कटेगा नहीं, नहीं तो बैम्बू में धागे वैसे होते हैं
हट जाता है। तो ये सिंपल बाकी चीजें जो हैं सिंपल कटर्स हैं, और मेन जो सबसे ज्यादा कॉस्ट है ये प्लानर से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा ये क्रॉस कट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दिस इज वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। 15-16 हजार में ये भी मिल जाता है। सारा मिला के मैंने आपको बताया, इसमें प्रिजर्वेशन के लिए जो टैंक बनाएंगे उसको इंक्लूड करके 50,000 के लिए सेमी ऑटोमेशन हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रॉ मटेरियल सप्लाई। इंडिया में क्वालिटी रॉ मटेरियल का दर अभाव है। आपको आज भी बता दूं, मध्य प्रदेश में बैम्बू को ट्रांसफर परमिट में फिर से बाहर नहीं किया, कर दिया था हाई कोर्ट के ऑर्डर के कारण उसको वापस, देयर इज सम इशू, आई डोंट नो लीगल इशू है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको नहीं लगाया। तो अब जितने भी बैम्बू मध्य प्रदेश से नहीं जाएंगे, वो घूम के जाते हैं। अब मैं कहता हूँ जब 2017 दिसंबर में लेजिस्लेट कर दिया गया था, इसको फॉरेस्ट से बाहर कर दिया गया कि जो भी बैम्बू फील्ड में ग्रो करेगा अदर देन फॉरेस्ट, दैट कैन बी ट्रांसफर, उनको टीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रांसफर परमिट की। बट अभी भी सीन नहीं है। ऑल्दो ये बहुत आसान हो गया, इससे पूरा मूवमेंट बहुत तेज हुआ है, इम्प्रूवमेंट 70% है। बट मैं अभी भी कहता हूँ 1 नेशन 1 परमिट, पूरे देश में एक परमिट ऑनलाइन होना चाहिए, दैट्स इट। आसान कीजिए चीजों को ना, आसान हमारा ही है। स्किल एनहांसमेंट की बहुत जरूरत है। अब देखिए, जब तक आप इनको बढ़िया, हमको फिटिंग के लिए इतनी टेक्नोलॉजी हाई हो गई है, हम क्यों हेटिच के चीजों को क्यों ना यूज करें? क्योंकि हम जब तक अच्छे अच्छे चीजों को नहीं यूज करेंगे तब तक वो चीज में फिनिशिंग नहीं आएगी। जब फिनिशिंग नहीं आएगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए स्किल एनहांसमेंट के लिए ट्रेनिंग, फर्नीचर काउंसिल ऑफ इंडिया है, फर्नीचर एंड फिटिंग काउंसिल है, ये सब को हमको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। वो आइडिया देंगे, वो भी बैम्बू को नहीं समझते हैं, जानेंगे, फिर हमारे लिए कुछ नया इनोवेशन लाएंगे। मशीन्स के लिए भी बात होनी चाहिए। देखिए अभी भी बता देता हूँ, जो हमारे मशीनरी इंडस्ट्री है बैम्बू की, उन्होंने बहुत क्वालिटी मशीनें देखी नहीं है। उन्होंने 1-2 बार चाइना विजिट में देखा था। अब चाइना के साथ तो मुश्किल है, पर ताइवान एंड अदर लोगों के साथ तो हम कर ही सकते हैं। तो हमको ऐसे कंट्रीज में करके बिजनेस टू बिजनेस या गवर्नमेंट टू बिजनेस या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोलैबोरेशन में करने की जरूरत है। कंटेम्पररी डिजाइन्स, ऑल्दो बहुत बड़ा इसमें ऑलरेडी एनआईडी अहमदाबाद है, बैंगलोर में सुशांत जी हैं, बहुत अच्छा करते हैं काम। फिर भी मैं अभी भी कहता हूँ कि हम एक बंधन में क्यों बंधे। मैं इनोवेटिव आइडियाज अपने लोगों से लेता हूँ, जो लोग मेरे आसपास हैं, जो थोड़ा अलग सोचते हैं और वो बैम्बू पे काम करते हैं, तो और भी इनोवेटिव आइडियाज दे सकते हैं। बैम्बू के ट्रीटमेंट को जो भी यूज करेगा उसको प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। क्वालिटी टेस्टिंग ड्यूरेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। आपने थोड़ा अप स्केलिंग किया, आपने कोई 10-15 लाख वाली यूनिट बनाई और आपको क्वालिटी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। कॉस्ट के लिए आपको मैनेजमेंट वालों की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक्चुअली जो कॉस्ट हमने लगाया है वो रिप्लेसमेंट में, गारंटी में, वो कॉस्ट में उसमें इंक्लूडेड है या नहीं, ये बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, हाइब्रिड के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि दो बैम्बू या किसी और चीज के साथ भी करना चाहिए काम, अल्टरनेटिव अच्छा मिलता है। और ऑलरेडी दीनदयाल पोर्ट फर्नीचर पार्क है कांडला पोर्ट ट्रस्ट में, वहाँ पे हमको एक छोटा सा बैम्बू डेडिकेटेड सिस्टम डेवलप करना चाहिए। ये जरूर मैं शेयर करता हूँ, ये CCA ट्रीटेड या आस्क्यूब ट्रीटेड बैम्बू का ऑफिस है FRI में, 1955 में बना था। सो मोर देन 66 ईयर स्टिल वर्किंग ऑफिस, और बढ़िया काम चल रहा है। सो एक भ्रांति है कि बैम्बू में लाइफ नहीं होती, खत्म कर दिया भ्रांति दिखा के। और भी बिल्डिंग्स हैं जो 70, 60, 50 ईयर्स उन्होंने पूरा किया हुआ है। इफ इट इज ट्रीटेड प्रॉपरली, इसका लाइफ बहुत होता है। तो हाँ, ये मैं बात कर रहा था, गोवा में ये किसी ने बार के लिए डिजाइन किया था। सो इट्स अ नाइस वन। ये तो हमारे कोई भी बैम्बू के कारीगर जो हैं इस तरह के डिजाइन को कर सकते हैं। पर डिजाइन फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग बहुत कैजुअल वर्कर होते हैं, कैजुअल वर्क से सेक्टर का कभी भी फायदा नहीं होता है।
इसमें डेडिकेटेड वर्कर हैं जो बड़े बड़े ही क्वालिटी को देखेंगे, तब आपको दाम भी अच्छा मिलेगा, सेक्टर भी डेवलप करेगा। ये मिस्टर R N पांडे हैं, राम नारायण पांडे हैं, हमारे स्टूडेंट ही रहे हैं, बैम्बू के एंटरप्रेन्योर हैं, और पहले नॉर्थ ईस्ट में काफी काम किया, अभी इन्होंने यूपी में ऑफिस खोल दिया। तो इन्होंने एक शेड अपना डेवलप किया था, सो उनका मैं, आप देख रहे होंगे लोग चढ़े हुए हैं मजबूती में। किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट है तो बात करें। मेरे ख्याल से सभी देख ही रहे होंगे। सो दिस इज द सिंपल डिजाइन, 2 मंजिली उन्होंने डिजाइन तैयार किया। शेड एंड अदर सेक्टर में बहुत अच्छा इसका काम हो सकता है। तो हमको गौशाला है, बहुत सारे शेड है, नर्सरी है, ग्रीन हाउसेस हैं, हम इन सब की बात करें ना, तो यहाँ पे इंडिया में हर चीज के लिए आपको बता दो, इनिशियल डाटा जब प्रोवाइड किया गया था 10,000 करोड़ से ज्यादा स्टिक इंडस्ट्री थी खाली, जिसमें अगरबत्ती तो है जिसको मैं बहुत पसंद नहीं करता, और भी चीजें हैं। कुल्फी के स्टिक का ही 600-700 करोड़ का है, 1400-1500 करोड़ का पतंग की जो वो बनती है, उसी का मार्केट है। सो मार्केट तो बहुत बड़ा है, तगड़ा मार्केट है। ये एक एग्जांपल है वॉच टावर का, ये एक प्रोजेक्ट होगा, ये मन्ना राय हैं त्रिपुरा में, उन्होंने शेयर किया था, वो तो कई गवर्नमेंट के लिए बनाते हैं। दिस इज वन ऑफ द, ये जो लेफ्ट साइड में बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो बहुत इंडिया के बड़े मशरूम के बिजनेस है इनका। ये मेरे पास पहली बार आए थे, इनको डिजाइन दिखाई तो ये बैठ गए। सो सिंपल डिजाइन, उन्होंने बिना बोले ही बैठ गए एक्चुअली। 63 kg वेट और आराम से ले लिया बैम्बू ने। तो ये तो स्ट्रक्चर था, देन ही वाज कन्विंस्ड। और 5, ये देख रहे होंगे करीब 22-23 फीट ऊंचा स्ट्रक्चर मैं मशरूम के लिए बनाया गुजरात में, और हमारे एक दोस्त ने इसमें काफी मदद की। लेफ्ट साइड में डाउन में देखेंगे तो यू विल सी मशरूम के वो रखे हुए हैं, ये वही स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आपने देख लिया, हमने डिस्कस किया कि बैम्बू का, हम अभी तो बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स की, बट स्ट्रक्चर्स, फर्नीचर्स, ये सारे में जो मशीन रिक्वायरमेंट है वही है जो मैंने बताया। अब स्केलिंग करेंगे तो और कर लेंगे। फ्लैट बैम्बू के लिए अलग सिस्टम होता है, और वो काम करते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू फूड एंड बेवरेज एंड न्यूट्रोस्यूटिक्स। एस्टिमेट किया गया है $10 बिलियन से बड़ा मार्केट है। बड़ी रकम है, $10 बिलियन मतलब लगभग 8 80,000, 75,000 से 80,000 रुपए का मार्केट है ये वर्ल्ड वाइड। बैम्बू में एक फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं उनके शूट, जो कि म्यूटेशन को कंट्रोल करता है। और म्यूटन जो फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं कई तरह के जो हमारे बॉडी में म्यूटेशन है, सो इसका एंटी कैंसरस रिस्क, मतलब ये एंटी कैंसरस इफेक्ट भी है। बेसिकली क्या होता है, म्यूटेशन जो होता है तब वो PCD नहीं होती, प्रोग्राम सेल डेथ। सेल को मर जाना चाहिए, मरता नहीं है और बढ़ता रहता है, तो उसको ये कंट्रोल करता है। इसके शूट में एंटी इंफ्लामेटरी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज है। और ये तीनों बांस का जो आइटम देख रहे हैं, ये मैंने खुद बनाया है, मेरे ही इसका पार्ट है। लेफ्ट में है एस्पर, डेंडोकलेमस स्पीसीज बहुत अच्छा एडिबल शूट बनाता है, और एस्पर उनमें से एक है। जितना बड़ा होगा जाइजेंटियस में और भी किलो, ये लगभग जो राइट साइड में डाउन वाला है 4 किलो के आसपास का है। तो उसके बाद वो हम इसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेसिंग का तरीका हाथ से खुद भी करो तो बड़ा आसान है। और राइट साइड में बैम्बू की टी है, ये भी मैंने एक बार जब ट्रेनिंग के दरमियान लोगों को पिलाया, हम करते रहते थे तो काफी इंथुजियास्ट ट्रेनीज भी होते थे, नई नई चीज लेके आते थे। अभी देखेंगे तो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में यूज होते हैं, हम कम करते हैं बट वर्ल्ड वाइड बहुत यूज होते हैं। और कैन प्रोडक्ट भी है, 8वें नंबर पे देखेंगे, इसमें बैम्बू का अचार है। बैम्बू का जो 5वें छठे, चौथे 5वें छठे नंबर पे ये जो कद्दूकस किया हुआ है, इसको फॉर्मेंट करते हैं, और जितने भी
नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इंडिया का या वर्ल्ड के जो ओरिएंटल पार्ट बोलते हैं वहाँ पे खाने का रिवाज है। बाकी शूट्स हैं, हम इसको बनाते हैं। 7 नंबर पे अचार है। इसका कोफ्ता मैंने पिछले साल बनाया था, इस साल में अब बनाऊंगा क्योंकि हमारे यहाँ शूट जो है वो सितंबर में ठीक ठाक मिल पाती है। ये यूटेरोटॉनिक बोलते हैं इसको। और यूटेरोटॉनिक होने के कारण इसमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है, लेडीज के लिए अच्छा माना जाता है। और इसका फायदा है, मेडिसिनल सप्लीमेंट भी बोलते हैं। इसमें जो डिलीवरी का है उसको बढ़ा देते हैं। हेलो, मैं बाद में बात करूंगा, मैं मीटिंग में। काम को अच्छे रहेगा। तो फिर पोटेशियम कंटेंट बहुत होता है बैम्बू में। तो पोटेशियम आपको पता है, केला है, बैम्बू है, इसके लिए ब्लड प्रेशर के लिए बढ़िया माना जाता है, रिड्यूस करता है। और पोटेशियम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो मैनेज करने के लिए। कैल्शियम और सोडियम का पाथवे को मैनेज करता है। राइट साइड और लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में हमारा जो इंडिया में प्रैक्टिसेस है वो होता है, और राइट साइड में ये प्रैक्टिस है। चाइना में फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे शूट प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके कैन करके वर्ल्ड वाइड भेजते हैं। सो जस्ट सी कि क्या ज़रूरत है, क्या क्या करने की ज़रूरत है। अब कुछ काम धाम शुरू हुआ है और इसको आगे और बढ़ाने की ज़रूरत है। हल्का सा ये मैंने प्रोसेसिंग का मेथड डिस्कस किया है। हम क्या करते हैं, पहले हार्वेस्ट करते हैं, कलम शीट रिमूव करते हैं, then we wash it and chopping and slicing. अब now we have a 3 process। एक है कैनिंग, वो ग्रीन यूज करते हैं फ्रेश में, कैन करते हैं वेट सॉल्टिंग या वेट सॉल्टिंग। ब्राइन में 10% नमक के साथ बोल में डालना चाहिए, लेकिन एयर पूरा निकाल देना होगा आपको, क्योंकि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट में मेरे बाद में फंगस बहुत आए। फिर ये काम अगर हम कैनिंग जब भी करते हैं इनर्ट इन्वायरमेंट में करें तो फंगस, जैसे इस समय फंगस, बैम्बू शूट के समय बारिश होती है तो फंगस आने के चांस कम रहते हैं, तो होते बहुत हैं। हम लोग लैमिनर एयर फ्लो और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जहाँ फंगस कम आए। विनेगर जो होता है वो उसमें जैसे सिरका बनाते हैं, अचार बनाते हैं, इसी तरह से। फर्मेंटेशन मेथड है जो कि हम लोग यूज नहीं करते हैं ज़्यादा, बट अ लॉट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडियन उसमें और वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं। एक तो बैम्बू बास्केट में डाल के करते हैं, दूसरा अर्दन पॉट में डाल के उसको फर्मेंट करते हैं। प्रोसेस मैंने बता दिया है कि इसको हम लोग बनाना लीफ में ढक देते हैं, फिर उसके बाद उसमें शूट को पैक कर देते हैं, फिर बनाना लीफ से ढकने के बाद उसके बाद वेट रख के छोड़ देते हैं, और बहुत 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे धीरे धीरे फर्मेंट करता है। अलग अलग मेथड है, बहुत पुराना होगा मैच्योर करके वो एक अलग मेथड है। लाइकवाइज अर्दन पॉट में। थर्ड इज ड्राइंग। ड्राइंग खासकर बैम्बू में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब आप उसको प्रोसेस करेंगे, ग्रीन प्रोसेसिंग आसान नहीं होता, तो ड्राई करके शूट को यूज करते हैं। सॉल्ट की तरह जैसे अचार बनाते हैं उसमें पानी नहीं यूज करते हैं, सिंपली सॉल्ट डाल के मिक्स करके छोड़ देते हैं। अचार एक मेथड है ही है। हॉट एयर ड्राइंग है जहाँ ओवन में हम लोग डालते हैं और उसको। थर्ड मेथड है जो फ्रिज ड्राइंग। और उसके बाद जो लास्ट है वो सुपर हीटेड स्टीम, बहुत हाई प्रेशर पे स्टीम से तब ड्राई करते हैं। और तो नेचुरली ये मोस्ट एडवांस्ड मेथड है जो सुपर हीटेड स्टीम। एक सेक्टर है गिफ्ट सेक्टर। मैंने बड़ा रियलाइज किया था कि हम लोग जब भी मेमेंटोज के लिए खरीदने जाते थे तो चाइनीज ही सामान मिलता था। तो मुझे लगा कि छोटा मोटा सेक्टर नहीं है, हर शहर में कुछ गिफ्ट की दुकानें हैं, एंड वी आर डूइंग सो मच थिंग। इस सेक्टर में हमको रखने की ज़रूरत है, मेहनत करने की थोड़ी ज़रूरत है, एंड वी विल हैव मैनी मैनी जिसको मेमेंटोज बनाते हैं, लोकल प्रोडक्ट है, तो ये सेक्टर ऑलरेडी है, इसमें हस्तशिल्प में है बढ़ाने की। राइट साइड में जो यूज़ किया है ये जैजेंटोक्लोआ, सॉरी ये डेंडोकलामस जैजेंटियस बड़ा बैम्बू है। इसका बैम्बू का प्लांटर और साथ में बुके रखने का, इस तरह की चीज़ों का कप तो देख ही लिया आपने। और
जैसे हम पेन्स और बहुत सारी चीजें हैं, अभी और डिस्कस करेंगे। ये मेरा खुद का ये वाला जो देख रहे हैं, यू कैन सी, ये ज्यादातर इसमें ब्लैक बैम्बू का है, एक को छोड़ के, ये लैंप को छोड़ के। तो ये तो बेसिक चीजें हैं जो हम बताते हैं कि ऐसा कर सकते हैं। मतलब इसे अच्छा किया जा सकता है और लोग करते हैं। देन कटलरी है, लेफ्ट और राइट में जो है, एक्सट्रीम लेफ्ट राइट में ऑलरेडी देहरादून में प्रोड्यूस होता है, और इसका डिमांड हाई लेवल के एंड में बहुत होता था। अब थोड़ा कम हो गया होगा बिकॉज ऑफ कोविड, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो खासकर जो फोर्क होता है या चाइनीज चॉपस्टिक्स होते हैं, उसमें बहुत अच्छा डिमांड है। और एक जैसे फेंस, फेंस हम कितना यूज कर रहे हैं, या तो ईट यूज करते हैं, लकड़ी तो हम नाक के बराबर यूज करते हैं क्योंकि इट्स अनअफोर्डेबल, स्टील यूज करते हैं। तो दैट इज वन एरिया जहाँ पे हम कर सकते हैं। बैम्बू उतना ही मजबूत होता है जितना स्टील होता है, आप उसको काटने के लिए भी दिक्कत होती है। अच्छे से ट्रीट किया हुआ बैम्बू है तो इवन फायर प्रूफिंग भी हो जाता है, इशू है ही नहीं। तो एक एग्जाम्पल शो किया, देखने में सुंदर लग रहा है। फर्दर जो हमने बताया कि ये होल्डर्स हैं, वाइन वाटर होल्डर है। इनफैक्ट अगर कुछ बैम्बू वाइन्स भी हैं जो बेवरेज के कंटिन्यूटी में ही है, चाइना में ज़्यादा यूज होता है। इसको एक तरह से तो करते हैं कि उसको फिल करके यूज करते हैं, और एक तरह से बैम्बू का मटेरियल ही लेते हैं एज अ, जो बुरादा होता है उसको फर्मेंट करके तब जो हम वाइन बनाते हैं या बियर बनाते हैं, वो सेक्टर है। इंटीरियर डेकोर, देखिए अब ये इंटीरियर डेकोर का पार्ट है। गुजरात में एक किसी ऑफिस का डेकोर किया हुआ है। ओनली थिंग इज हाउ टू पुट थिंग्स एस्थेटिकली। तो ये देखिए एस्थेटिक पुट करिए करा है तो डिमांड तो है ही, हर चीज का सेक्टर का डिमांड है। देन यू हैव मेनी कलर्स इन बैम्बू, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज देयर। ये एक जो, हाँ हाँ, कतर में एक हॉर्टिकल्चर का वो था। उसमें एक मेरी सीनियर है, वो पर्टिकुलर कंपनी में जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं, उन्होंने एक फोटो शेयर किया था। जब मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ से जाके मटेरियल कतर में जब वो अपना शो कर रहे हैं ना, दिस इज शो ऑफ। मोस्ट ऑफ द प्लांटिंग मटेरियल उनका इंटरेस्ट का था, बट उन्होंने पूरा सस्टेनेबली यूज करने के लिए बैम्बू को फ्रेम को इस्तेमाल किया है। यू कैन सी दिस। ये हमारा नॉर्मल ट्रेडिशनल मॉडल है। ग्रीन वॉलिंग के लिए भी इस तरह से किया जा रहा है इस्तेमाल। देन नाउ वी आर कमिंग टू इंजीनियर्ड वुड, जो है ये गुवाहाटी एयरपोर्ट का पार्ट है। ये मटेरियल जो है लंबा है, बैम्बू का लंबर बना हुआ है, प्रोसेस्ड है, देख के नहीं लग रहा होगा। त्रिपुरा में मुथा इंडस्ट्री है, वो करती है, वही भूमिका है। दो तीन इंडस्ट्री है इस लेवल का काम करती है इंडिया में। नाउ वी आर कमिंग टू पल्प, बहुत बड़ा काम है ये। तो मैं रेयन ग्रेड पे बात कर रहा हूँ और दूसरा पल्प भी करूँगा। दो तरह का पल्प होता है, एक क्राफ्ट होता है जिससे हम पेपर बनाते हैं, और एक रेयन ग्रेड होता है जो कि डिजोल्व ग्रेड पल्प होता है, यानी माइक्रोसाइलुलोज। क्राफ्ट का बहुत डिमांड एकदम से बढ़ गया है। बताइए कैसे हुआ क्या कि पेड़ हम लिखने पढ़ने का काम तो कम हो गया, लेकिन सडनली एक सेक्टर डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ ऑनलाइन सेक्टर। तो चाइना कुछ दिनों तक, पिछले साल तक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा था, अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है। सडनली ये सेक्टर एकदम से राइज कर गया है तेज। रेयन ग्रेड पल्प में क्या होता है, सेल्यूलोज प्योर होता है, और उसको इस्तेमाल, अ, हम रेयन जिसको बोलते हैं मर्सराइज्ड कॉटन टाइप का भी मटेरियल बोलते हैं, वो तो इस्तेमाल बहुत अच्छा, इसमें प्रेस करना आसान होता है, या देखने में सिल्क के अपीयरेंस का जैसा कॉटन जैसा होता है। इसका एक और इस्तेमाल है, जो हम लोग टैबलेट्स खाते हैं, वो टैबलेट्स खाते हैं तो उसमें क्या होता है, टैबलेट्स में जो चीज़ें पड़ी होती हैं, एक्सीपियंट होता है। जो मेजोरिटी ऑफ चीज़ है वो है डिजॉल्विंग ग्रेड सेल्यूलोज या माइक्रो सेल्यूलोज। इसका स्टैंडर्ड PH101 है और PH102 है। हम इसके भी इम्पोर्टर हैं। उसके बाद जो
एम्यूनिशन होता है, एम्यूनिशन में स्पार्कल करके करने के लिए जो इस्तेमाल होता है, या सिगरेट के लाइटर के बेस में आपने देखा होगा, नॉट लाइटर, सिगरेट के बेस में फिल्टर होता है, वो माइक्रोसेल्यूलोज होता है। बहुत सारे इस्तेमाल हैं, नेम इट, और ये तो है ही है। तो हमने इनको बात किया था, अब उन्होंने कुछ प्रॉब्लम, ये पहले बनाते थे बट बेसिकली प्रॉब्लम ये आ गई कि 3 रुपए इनको ऑलरेडी दूसरा पल्प मिल रहा है, तो क्यों ये करें इस्तेमाल इसका। और कभी कभी इंपोर्ट करना आसान पड़ता है, तो Ajay sir, you are not audible, sir. I think Ajay sir is not with us. I think it's some network problem. So I requested to all participants, please wait. It may be try for again connecting with us. I think in Uttarakhand some weather condition is very bad, so it may be some network issue from sir side.
सॉरी, लाइट चली गई, वापस आ गई है, तो एम आई ऑडिबल? हाँ, मैं ऑडिबल हूँ क्या? हेलो? हाँ, मैं एक्चुअली एक ना वो प्रेजेंटेशन में बीच में हूँ, मैं भेज दूंगा फोटो खींच के, है ना? Yes, sir. You are audible. मैं एम ऑडिबल? Yes, sir. You are audible. Yes, sir. You are audible. एम आई ऑडिबल? Yes, yes, sir. कोई अगर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. ऑडिबल है ना? You're audible, but the voice is very low, sir. अच्छा, ठीक है। मुझे लग रहा है थोड़ी देर में हो जाएगा, ये कुछ टाइम लगाता है ना? अभी ठीक है? Yes, sir. अभी ठीक है, sir. ठीक है, Sir, yes, sir. मेरे ख्याल से वापस मैं शेयर करता हूँ इनको, शेयर। हम यहीं पे थे मेरे ख्याल से, है ना? रेयन ग्रेड पाल, स्लाइड आ गया? Yes, sir. अभी Slide is. आ रहा है स्लाइड? जी जी. Yes, sir. Your slide is visual, sir. ठीक है। फैन के कारण भी डिस्टरबेंस होती है, तो फैन बंद कर दिया। मेरे ख्याल से अभी बेटर होगा। हाँ, सो क्या हुआ कि जब हमने उनको वापस अभी बात किया, 90s में इन्होंने पल्प जो ग्रेड था बनाना बंद कर दिया, अभी वापस बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल के लिए भी बता रहा है। उन्होंने एक प्रॉब्लम बताई कि सिलिका जो है वो बहुत ज़्यादा होता है,
अब ट्रेनिंग खत्म हो गई है क्या? आवाज नहीं आ रही स्पीकर की। Sir, I think Ajay sir disconnected, sir. They trying for joining, sir. ओके ओके सर, थैंक यू।
Sir, voice is not coming. Sir, voice is not coming. Sir, our expert are disconnected. They are joining within 2 to 3 minutes, sir. So please wait, sir. Okay, sir. Yeah, I think Ajay sir is connected again. सॉरी कुछ आज मौसम ने हड़कंप मचा दिया है यहाँ पे। तो जब भी लाइटनिंग होती है तो ये सारा सिस्टम थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। Okay, sir. No problem, sir. बस मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। सारा रीस्टार्ट हो रहा है तो 1-2 मिनट मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है, 10-15 सेकंड ना। प्लीज बियर। No issue, sir. सो अभी आ गया होगा। Yes, sir. Your slides are visual, sir. हाँ, नाउ अब क्या कह रहे हैं कि इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि हम जब अभी तक में क्या होता है, बैम्बू काटते हैं, काट के ले जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज होते हैं। तो एक इशू है कि अब क्यों ना बैम्बू को वहीं पे प्रोसेस करें, क्योंकि एजम्पशन ये होती है कि जहाँ पे ग्रो करता है वहाँ पे लेबर उसका भी इन्वॉल्व होगा, जो ग्रोअर होगा। तो उन सब के साथ साथ उसको भी बेनिफिट्स उसका बढ़ता चला जाएगा। सो दीज आर हैवी ड्यूटी, इनफैक्ट ये मध्य प्रदेश का ही है, हैवी ड्यूटी चिपर है। इसको चिपिंग करते हैं फील्ड में ले जाके, जो कि बायोमास, पल्प या वुड इंडस्ट्री के लिए बहुत यूज हो सकता है। यानी हम वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल लेवल पे जब हमको प्लांटेशन करना पड़े या उसके बाद उसका मैनेजमेंट करना पड़े। एक बाद में बात आ रही है जिसका मार्केट डेवलप हो रहा है, वो है थर्मोप्लास्टिक कंपोजिट। बैम्बू के एक्चुअली बैम्बू का अगरबत्ती इंडस्ट्री में जो इस्तेमाल होता है 85% वेस्ट होता है, बुरादा। तो वो बुरादा, उस तरह के बुरादा को प्लास्टिक के साथ मिक्स करके और उसके बाद काफ़ी इससे मटेरियल बनाए जा रहे हैं, प्लेट्स बनाए जा रहे हैं, बर्तन वेसल्स बनाए जा रहे हैं, इवन गमले बनाए जा रहे हैं, जो कि थर्ड जनरेशन का प्लास्टिक होता है, जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है। और बैम्बू तो बायोडिग्रेडेबल है ही है। सो दैट इज अनदर कंपोजिट एरिया।
राइट साइड में भी वी डिस्कस्ड कि हम लोग कैसे बनाते हैं ये बैम्बू। इंडिया में होता है जो हम लोग चारकोल बनाते हैं, ह्यूज मार्केट है। आपको पता ही होगा कि जो बैम्बू का जो चारकोल जो है स्टील इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। बैम्बू में जो पर यूनिट चारकोल प्रोडक्शन है वो उसकी रिकवरी के हिसाब से बहुत अच्छा और ज़्यादा क्वांटिटी में माना जाता है। तो डाटा मेरे पास अभी नहीं है, मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब ये देखिए कि एक चाइना की कंपनी है, उन्होंने किस तरह से किया हुआ है। इस तरह के सिस्टम मैकेनाइज सिस्टम से करते हैं। उसमें हीट देते हैं, हीट देने के बाद जो गैसियस सब्सटेंस डेवलप होता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, निकाल देते हैं और निकाल के फिर उसको क्या नाम है, गैस का इस्तेमाल अलग चीज़ों में करते हैं। जब उसकी क्या नाम है, लो टेम्परेचर पे उसकी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसकी बर्निंग होती है तो अच्छा चारकोल बनता है। और अगर चारकोल में ब्रोमीन क्वांटिटी एक टिपिकल है जो आपने मैच कर लिया तो उसको बोलते हैं कि हम एक्टिवेटेड चारकोल, जो कि इंडस्ट्री ग्रेड या लैब ग्रेड होता है, जिसको खा सकते हैं और उसका इस्तेमाल होता है। लोग ब्लड क्लीनिंग और इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉस्मेटिक्स में हो रहा है, आपको पता ही है चारकोल वाला टूथपेस्ट बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। एक ये नया है, ये बेसिकली पैलेट्स के लिए हमने कहा, बालकुआ का बुरी तरह लगाया गया। कई तो यहाँ ऐसे नर्सरी वाले हैं जो कहते हैं जी 2-2 मीटर पे लगा दो, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। कभी ना लगाएं 5 से 5 5 by 5 मीटर, मतलब 15 से 15 फीट के नीचे में लार्ज टाइप के कोई बैम्बू ना लगाएं। लार्ज वाले लाठी बांस 3 by 3 में लगा सकते हैं, लेकिन जो डेंड्रोक्लामिस स्टेटस होता है, अदर देन दैट जो बड़े बांस हैं लार्ज साइज में वो ना लगाएं। नुकसान होता है फार्मर को। बेचने वालों का क्या है कि 6 गुना बेचते हैं, उनको तो पैसा बन रहा है, लेकिन जो किसान लगा के फंस जाता है ना, उसका बहुत गंदा और घटिया क्वालिटी का बैम्बू प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज वन थिंग। पैलेट इंडस्ट्री, आपको पता है हमारा कंट्री इंडस्ट्री जैसे जैसे तरक्की कर रहे हैं, ये हर सामान को मूव करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और ये स्पेशली डिजाइन किया गया है इस फोर्कलिफ्ट जो होती है उसमें फंस जाए। थोड़ा सा डिजाइन ये अच्छा है। जो टोकरी है मध्य प्रदेश में भी आपने बहुत देखी होगी, हर जगह भी देखी होगी, लेकिन इस डिजाइन से क्या फायदा होता है, वही टोकरी का शेप बदल जाता है तो ये प्लांटर्स में चला जाता है। प्लांटर्स में यू गेट गुड मनी, उसको पैसा अच्छा मिल जाता है। जो चीज़ आपको 50 रुपए में बिकती है या 100 रुपए में देते हुए आपको भी बुरा लगता है, 200 रुपए, उसका आप 400 और मतलब 200 300 400 ज़्यादा दे सकते हैं, प्लांटर्स में यूज़ कर रहे हैं। बैम्बू वेसल्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है सस्टेनेबिलिटी के लिए। कॉस्मेटिक सेक्टर में डिमांड है इसका, अगर अच्छी चीज़ें बनाते हैं। बॉटल का तो आपको ने देखा ही होगा, बहुत यूज़ कर रहे हैं, पर बॉटल में मेरे कुछ इश्यूज हैं। बैम्बू बॉटल को क्लैडिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसके अंदर स्टील या तांबा डालते हैं, तब तो ठीक है, बट बेसिकली फिर वो बॉटल कवर हुआ। बैम्बू में करेंगे तो स्मेल सी आती है, वो ठीक नहीं लगता है, दैट्स नॉट वेरी हाइजीनिक, समझा नहीं जाता है। जैसे हम लोग कप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कप को हम ट्रीट कर देते हैं, ट्रीट करने के बाद फिर हमको इशू नहीं होती, इनर्ट होता है, स्मेल नहीं आता है। तो ये भी एक अच्छा मार्केट है, हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं इनके। जो बैम्बू के नोवेल प्रोडक्ट्स हैं, ये बेसिकली जो ऑर्डराइजर है या ह्यूमिडिफायर है, ये एक्टिवेटेड चारकोल है। ये बैम्बू चारकोल का प्रोडक्ट है। जितने भी बैम्बू बेयर्स हैं, चारकोल वाले टूथ ब्रश हैं जो बैम्बू के साथ में, अब हैंडल के साथ भी इंडिया में कई कंपनी है जो बनाती है, हैंडल के साथ भी करते हैं। तो ये सब काम कर रहे हैं। और ये प्रोडक्ट जो है ज़्यादातर फाइबर है बैम्बू का। इसमें जो यूज़ किया है बैम्बू के फाइबर में अच्छी इलास्टिसिटी होती है, इसलिए इन्होंने लिक्रा के साथ ज़्यादा यूज़ किया है। और कुछ जो चीज़ें जो चेहरे पे लगा रहे हैं ये बैम्बू के फेस मास्क है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इट इज़ बीइंग डन। अब हम एक बात कर रहे हैं रीइंफोर्समेंट की, तो हम नहीं कर रहे हैं इस्तेमाल, लेकिन दुनिया भर में बैम्बू का स्टील की जगह इस्तेमाल शुरू हो गया है। बट ऐसा नहीं है कि टेक्निक नया था। आपको एक शेयर करता हूँ, बैम्बू क्रीट
FRI में बहुत सारे अर्ली पेपर्स हैं। एक पृथ्वी साहब होते थे, तो करीब 50 साल पहले उन्होंने बैम्बू प्लीट बनाए थे और वो उसकी अभी डिमोलिशन की गई है। तो हमने देखा स्टिल वो कंक्रीट उतना ही मजबूत है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें मौजूद हैं। लोग छत डालने से डरेंगे क्योंकि जान का डर है, लेकिन हम रोड तो डाल सकते हैं। सो हम लोहा सोचिए कि 6-7 रुपए किलो, ट्रीटमेंट के बाद वो हो सकता है 12 रुपए, 10 रुपए से 12 रुपए किलो होगा मैक्सिमम, बता रहा हूँ, ऑल वैल्यू एडिशन के साथ। और आज के डेट में स्टील की रॉड 80 रुपए किलो है, 70 से 80 रुपए किलो के बीच में है। तो आप दाम का, आप कॉस्ट से समझ सकते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। लेफ्ट साइड में जो इंडियन मेथड है, पुराने मेथड है, हम लोग चिकन नेट के साथ यूज करते हैं। राइट साइड में फुल बिल्डिंग बना रहे हैं। अब जैसे ये लेफ्ट साइड में आपको दिखाया है, ट्रेडिशनल हाउस है, ये आसाम में यूज होता है, खासकर एक जनजाति है वही यूज करते हैं, मिसिंग बोलते हैं। जमीन से ऊंचा क्योंकि ये बाढ़ एरिया है तो ऊंचा होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और राइट साइड में आप देखिए तो एक चाइना का डेवलप किया गया, इंडिया में भी वैसा ऐसे बन रहे हैं। ये बैम्बू का कन्वर्टेड है, लंबर्स के साथ है, इस्तेमाल किया गया अक्रॉस द एरिया सारा। आप देख सकते हैं, लुक्स ब्यूटीफुल, अच्छा डिजाइन है। तो हाउ वी गो फॉर दैट, इसके लिए डिजाइन पे, इनोवेशन पे, इन सब की जरूरत बहुत है। नाउ अब ये ऑलमोस्ट हम एंड पे आ रहे हैं। हम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट की अपॉर्चुनिटीज इसमें क्या क्या है। चैलेंजेस तो आपको और चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये अगर हम ड्यूरेबिलिटी बढ़ाते हैं तो उसका हम इंक्रीज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में, हैंडीक्राफ्ट्स में, फर्नीचर में। बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट जो कि वैल्यू एडिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। इंजीनियर्ड बैम्बू जो है, मॉडर्न फर्नीचर इसका बनता है। आप उसको समझ ही नहीं सकेंगे कि टीक है या क्या है, जो मन में चाहे वैसा टेक्सचर का बना सकते हैं। और मजबूती बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बैम्बू का फाइबर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। आपने देखा होगा कि एक बैम्बू का डंडा, आप बीच में बैठेंगे, उसी मोटाई का डंडा आप दूसरे टिम्बर में करेंगे तो टूटने का डर रहता है। सो ये काफ़ी अच्छा वेट ले लेता है। शेयरिंग जो लेटरल है और हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है, दोनों जो प्रेशर है बहुत अच्छे से लेता है। देयर आर एरिया जहाँ पे हमको रिजुवेनेट करने की जरूरत है, लाइक बैम्बू टेक्सटाइल, चारकोल ब्रिकेट्स है, कॉस्मेटिक्स है, एक्सेट्रा। फूड प्रोसेसिंग को हमको अच्छे से लेना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, इसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ जोड़ना पड़ता है। कांस्टेंट रॉ मटेरियल शॉर्टेज, ये रियल कांस्टेंट है, ये आप मान के चलें, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट इंडिया में आज के डेट में बहुत है। लार्ज स्केल प्लांटेशंस नहीं है, फॉरेस्ट में तो है लेकिन फॉरेस्ट वाला एक्सेसिबल नहीं है। मध्य प्रदेश में आज भी इशू यही है कि बैम्बू तो है पर वो अवेलेबल नहीं है। बहुत सारा बैम्बू फ्लावर किए जा रहा है, फ्लावर करता है तो बैम्बू खत्म हो जाता है। तो आई यूज टू गेट रिपोर्ट, खासकर जो बांस है, कांटा बांस, उसकी तो फ्लावरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई है। फिर जो हमारे प्लांटेशंस हैं उनमें लो प्रोडक्टिविटी है। अब लो प्रोडक्टिविटी है तो उसको सिलेक्शन, जेनेटिक इंप्रूवमेंट और साथ में कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, अभी हम लोग जो रेकमेंड कर रहे हैं उस कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के साथ 25 टन पर हेक्टेयर पर ईयर से ज़्यादा 5 साल के बाद शुरू हो जाता है। दैट ग्रोज, वो बढ़ता है, अगले 5 साल तक बढ़ता जाता है थोड़ा थोड़ा। एंड आई माइंड इट, मैं बात कर रहा हूँ 5x5 मीटर प्लांट। अगर आपने जहां क्लोज किया, आपको लगेगा कि आपको बताया जाएगा कि दूसरे साल में होगा, तीसरे साल में होगा, मत भ्रम में पड़िए। बल्कुआ इतना पतला होता है जो लाठी बांस भी नहीं बन पाता है, जिसका कोई मार्केट ही नहीं है। जिसकी आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि 150 रुपए या 120 रुपए या चलो 100 रुपए डंडा बिकेगा, आपको 12 रुपए में नहीं बिकेगा। सो गो फॉर द बड़ा करेंगे ना। 1 हेक्टेयर में 5x5 में केवल 400 बैम्बू लगता है, 1 एकड़ में केवल 180 लगता है। प्लीज उतना ही लगाइए क्योंकि आप उसको खाना दीजिए, पानी दीजिए, बढ़िया से उसको कीजिए। गड्ढा कभी भी 2x2 फीट का बनाइए। खाद का एक अच्छा रेजिमेंट पूरा कीजिए। पानी बहुत चाहता है, अगर ड्रिप ले सकते हैं ड्रिप ले लीजिए, लेकिन वो इनपुट जो है लिमिटेड में डालिए। सो प्लीज मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी नर्सरी वाले के झांसे में ना आए, आप जरूर किसी भी साइंटिस्ट से डिस्कस करें। मेरा नंबर भी एक्सेस में रहेगा। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि
बता दे रहा हूँ कि 2 बाई 2 मीटर पे बोलते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि जहां मैं 400 बोलता हूँ 2500 लगवाते हैं। अब 2500 का आप सोच सकते हैं कि 40 से लेके 50 रुपए कीमत है। आप 1 लाख रुपए देंगे और कहाँ कहाँ 40 रुपए के हिसाब से 16,000, 84,000 की बचत तो यही हुई। फिर 84,000 आपको अगले 3 साल में इतना ही इसको खाना पानी देने में लगेगा। तो अब मैं जहाँ 16,000 बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ कि थोड़ा उनको खाना पानी दे दीजिए। आई एम टॉकिंग अबाउट 50,000 का कॉस्ट, और मार्केट में वो जैसा बता देंगे आपको कॉस्ट करीब 2 से 2.5 लाख पड़ेगा। अब 2-2.5 लाख और 50, पहला तो प्रॉफिट यही हो गया आपका। 2 लाख रुपए प्रॉफिट तो मैंने ऐसे करा दिए। अब उसके बाद बैम्बू बेच के कराइए, है कि नहीं? तो झांसे में मत पड़िएगा। किसी भी एग्रीवर्सिटीज वाले, किसी भी कल्टीवेटर से आप कांटेक्ट कर लीजिए, केवीके वालों से कर लीजिए। वो हमको ढूंढ लेते हैं और फिर हमें बताते हैं। आप देखेंगे यूट्यूब में मेरा तो चैनल ही बड़ा पीछे रहता है, मतलब मैं तो डीडी वाले पे आता हूँ, तो इनके तो झांसे वालों के तो एकदम टॉप पे रहता है। वो रातों रात करोड़पति नहीं होता है। ऐसा यार कैसा हो सकता है? बेवकूफ बनाने वाली बात है। अगर करोड़पति होते तो इंडिया में सबसे बड़ा फॉरेस्ट है बैम्बू का, तो हम तो पता नहीं क्या होते, बेच बेच के खा रहे होते। नहीं होता है, कुछ नहीं होता है ऐसा। प्रैक्टिकल खेती कीजिए, समझदारी से कीजिए, स्मार्ट एग्रीकल्चर कीजिए, वैल्यू एडिशन कीजिए। जो मैं फर्नीचर की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट गो मशीन के साथ गांव में ही इंडस्ट्री लगा सकते हैं आप। छोटी छोटी इंडस्ट्री से शुरू कीजिए, छोटे छोटे काम करने शुरू कीजिए, यूजेस बढ़ाइए, रिलायबिलिटी कीजिए। अभी तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि किसी ने वो बैम्बू प्रिजर्वेशन पे किया है। बैम्बू प्रिजर्वेशन पे बोला नहीं, बेसिक कुछ नहीं होता है। तो बोरिक का ट्रीटमेंट, जिसमें 60-40, 6 किलो बोरेक्स और 4 किलो बोरिक एसिड और 100 लीटर पानी में घोल के आप उसको 3 घंटे बॉयल कीजिए, साथ में कोई कलर डाल दीजिए, देखिए कि कहाँ भीतर तक गया है कि नहीं गया है। सबसे सिंपल ट्रीटमेंट है, इससे उसकी लाइफ बहुत गुना बढ़ जाती है। तो बहुत सारे सीसीबी आता है, वो कीजिए। उसके बाद वैल्यू एडिशन करके बाद बिंदास यूज कीजिए बैम्बू का। तो लो प्रोडक्टिविटी एक मेजर फैक्टर है। इसको रिकमेंड, मेरे पास काफी चीजें हैं, आने वाले टाइम में शेयर करूंगा। शायद हम ये तो ओपनिंग है, इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव होते हैं। कल्टीवेशंस पे भी हमारा काफी वो है, लोगों से काफी काम होता है, बताते हैं हम कि ऐसा करना चाहिए जिससे आपका रिटर्न ठीक हो जाए। एंड देन आपको वैल्यू चेन एडिशन जो प्रोसेस है, ये एक ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। मैंने बताया 50,000 का जो मेरा सेट है, वो 3 लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। तो आप सोच के देखिए, इसको मैंने जब नीति आयोग को बताया था, तो उसको अनिल अग्रवाल जी हैं, आईआईएम अहमदाबाद से रिटायर होके बहुत फेमस हैं वो। उनका हनी बी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्वावलंबन पे और रूरल इन्वेंशन इनोवेशन पे काम करते हैं। मैंने बहुत पसंद किया था। हमको छोटे लेवल पे हर जगह पे पूरे इंडिया में फैलाना है, और फिर बाद में आजकल तो बढ़िया है, ऐप बेस्ड सिस्टम बनाना है, जहाँ पे ग्रोअर भी है और जहाँ पे प्रोड्यूसर भी है और जहाँ पे कंज्यूमर है, तीनों को मिलाना है। और हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ बैम्बू का 1-2 प्रोडक्ट भी खरीदिए, बनाइए, चाहे 100 रुपए का ही खरीदिए, तो एक जनरेट होता है। इससे बहुत लोगों का रोजगार भी है और उनको फायदा होता है। आगे द रोड अहेड, ये हमने जितनी बातें की हैं, मोस्टली दिस इज पार्ट ऑफ द रोड अहेड थिंग। प्राइवेट प्लांटेशंस, यस। कैचमेंट एरिया स्कीम इज द थिंग आई ऑलवेज टॉक अबाउट। कोई भी पेपर फैक्ट्री है उसके 20 से 25 किलोमीटर तक, कोई भी इंडस्ट्री है उसके 20 से 25, जिससे कि जितना अगर बगल में ही फैक्ट्री है तो आपका दाम एकदम से आप विन विन सिचुएशन में है। तो हमेशा इस बात का याद रखें। इम्प्रूव सिल्विकल्चर और एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, जिसकी हमने अभी बात की है। हाई यील्डिंग प्लांटिंग स्टॉक का इस्तेमाल करना है, नहीं तो रिलायबल करना है। बैम्बू में बता दूं आपको, ठगी इतनी ज्यादा है कि सीडलिंग में मुझे ही नहीं पता है, मैं इतने बैम्बू को पहचानता हूँ, पर सीडलिंग स्टेज में कांटा बांस भी दे देंगे तो मैं कंफ्यूज कर जाऊंगा। मैं बैम्बूसा को डेंडोकैलामस से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, लेकिन बैम्बूसा के स्पेसीज टुल्डा है, न्यूटन्स है, बाल्कोआ है, एक सीडलिंग के स्टेज में करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस लेवल पे चीटिंग ना हो, क्योंकि 2 बैम्बू इंडिया में सबसे ज्यादा है। 45% बैम्बू जो पूरे इंडिया में है वो है लाठी बांस, डेंड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस।
यानी सारे के पत्ते इसके मिलते जुलते होते हैं, चाहे वो लाठी बांस पतला है, चाहे वो ह्यूज जाइजेंटियस है। ऑल्दो फर्क होता है, लेकिन 1 साल की बात कर रहा हूँ, छोटा छोटा सीडलिंग। देन दूसरा है सेकंड नंबर पे जो 20% एरिया में इंडिया में होता है, काटा बांस, कटाहा, कटोहा, जो भी नाम से बोले, बैम्बूसा, बैम्बूस, ये भी बैम्बूसा से मिलता जुलता होता है। तो दोनों में ठगी के पूरे चांस होते हैं, उससे बचें। क्वालिटी स्पीसीज जान के और क्वालिटी सीड, आजकल मैं बोलता हूँ आप उसका एज जानिए, क्योंकि एक बार लगाइए 40 साल तक उसको काटना ना पड़े, आप काटते रहिए, वो मरेगा नहीं, क्योंकि फ्लावरिंग आएगा फिर मर जाएगा सारा। सो वैल्यू चेन को एनहांस करना है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, छोटे लेवल पे नहीं हो सकता है, लेकिन आप लोग फील्ड फंक्शनरी हैं, बात करने की जरूरत है, हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी मैं कल जम्मू वालों से, कश्मीर से बात करूंगा, वो लोग चेन की बात कर रहे हैं, तो उस स्केल पे बात करनी होगी, हम सबको मिलके बैठना होगा, एक्सपीरियंस लोगों को बुलाना पड़ता है, फिर बताते हैं कि इसका ऐसा ऐसा मॉडल बनाना, उस पर काम भी करना है, तो उस पर काम करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसमें ह्यूज है, ट्रीटमेंट का अलग काम है, इंडस्ट्रियल लेवल प्रोसेसिंग है, और मध्य प्रदेश में जहाँ पे दोनों चीज है, आप ये सोचिए कि देवास, इंदौर, ये सारी फैक्ट्रीज वहीं पे हैं जो मशीनरीज बनाती हैं बैम्बू की। फिर ई मार्केटिंग चैनल डेवलप करने की बात, मैं तो कहता हूँ ई मार्केटिंग चैनल क्यों ना करें हम, सबसे अच्छा है, घर में बैठी घर की दुकान है कि नहीं, कहते भी अमेजन में घर की दुकान है। और जेम में आपको बता दूं कि जेम में बैम्बू के प्रोडक्ट आ गए हैं। जेम में क्या होने से फायदा क्या है, सरकारी परचेज मेरे लिए बहुत आसान है, मैं 25,000 का प्लीज ऑर्डर कर देता हूँ। तो अब जेम में पोर्टल है, इश्यूज हैं, आप उनसे बात करें, वो लोग भी अब बहुत चेंज हो चुके हैं, वो सॉर्ट आउट करते हैं। और ये सारी चीजें के साथ साथ रिसर्च, हमने सब रिसर्च जो किए थे, जब मैं जितनी बातें बता रहा हूँ 1950 से लेकर 70 में बहुत काम किया है FRI ने, बहुत, मेरे बर्थ के साल तक, और बैम्बू की बिल्डिंग सब बनी हुई थी, लेकिन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ नहीं पाई, क्योंकि उस समय हम रिसेप्टिव नहीं थे, पुअर मैन बोलते थे। अब नहीं ऐसी बात है, तो वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, फिर बिल्ट अप करके हम नया इनोवेशन की बात करें। ह्यूज पेपर्स हैं, अवेलेबल है, R&D का पार्ट है, एक्सटेंशन का मेजर रोल है आज के डेट में, यूटिलाइजेशन का मेजर रोल है, मार्केटिंग का मेजर रोल है। ये सब सारे करने के बाद then we are going to get a great breakthrough out of this. So इन सब के साथ मैं धन्यवाद कहता हूँ आप सबको, और अब मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाएगा। मैंने शेयर भी कर दिया था, क्या कहते हैं, इनको शेयर किया हुआ है। सो मेरे ख्याल से स्टॉप शेयरिंग पे आ जाता हूँ मैं, 1 to 1 हो जाएंगे। So now we are with all you. अब जो भी क्वेश्चन है प्लीज शूट, कोई भी क्वेरी है। मेरा मैं अपना ईमेल शेयर कर देता हूँ, शायद आसान होगा, ठीक रहेगा क्या? जी हाँ सर, प्लीज। Any participants who have any queries? मैं 10-12 क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कम से कम। Any participants? Please ask if you have any doubt or queries. Sir. तो मेरा ईमेल नंबर है, इनको शेयर कर दिया है, so anything Yes, Sandeep sir. Sandeep Raut sir. Hello, I am audible. Sir, I think there is no question or query from the side of participants. So
Sir, thank you very much for your nice, wonderful, and motivational this lecture, which will be definitely useful for our new entrepreneur. Sir, thank you very much. I am not wrong if I say this. You have given this lecture on this bamboo. I can say this is not bamboo. I can say this is the culprit, in my mean. That is giving everything to a human being, either that is fuel, fiber, food, house, shelter, everything. So very wonderful lecture, sir. And once again, thank you very much for accepting our this invitation. Definitely, if we have any difficulties or any queries, so we have your email and we have your phone number. We will definitely contact to you again. Sure. So again, thank you very much, sir. Thank you for joining us, sir. Thank you. कर दीजिए sir. And